شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ پروگرام میں جو ہے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ذرا شاہ صاحب سے کچھ چیزیں ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب آج یہ اجلاس ہوا, اسپیکر نے استعفے منظور کر لیے, لیکن آپ لوگ پھر بھی اسمبلی گئے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف واپس اسمبلیوں میں آنا چاہتی ہے؟ حکومت ہمیں خود کنفیوز دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف دعوت دیتے ہیں کہ اب اسمبلی میں آؤ, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ان کے استعفے قبول کیے جائیں. جب ہم اسپیکر سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے استعفے آپ قبول کیجئے, وہ کہتے ہیں نہیں, اس کا ایک ضابطہ ہے, ایک طریقہ ہے, اس کو میں فالو کروں گا, یکمشت میں نہیں کر سکتا, میں ایک ایک کو بلاؤں گا, اپنی تسلی کروں گا. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ تسلی کر لیجئے, پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پہلے 21 پہ 11 قبول کر لیے. پھر جناب انہوں نے جب ہم نے کہا کہ ہم شاید اسمبلی میں جائیں, اور جو قائد حزب اختلاف ہے اس وقت وہ تو ہمیں سرکار کے پروردہ دکھائی دے رہے ہیں, تو اس پر نظر ثانی کے لیے ہم درخواست کریں, تو پھر انہوں نے 35 ہمارے کل کر دیے. پھر آج ہماری میٹنگ ہو رہی تھی تو 35 استعفے آج قبول کر لیے. تو آج ہم سب گئے ان کے پاس کہ جب آپ نے یہ طریقہ اپنا ہی لیا ہے کہ بغیر ان کو پرسنل ہیئرنگ دیے اور آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو ہم سب آئے ہوئے ہیں اور جو بقیہ رہ گئے ہیں یہ بھی پیش ہو رہے ہیں, ان کی بھی قبول کر لیں. تو پھر اسمبلی سے غائب, نہ وہ موجود تھے, نہ ڈپٹی اسپیکر موجود تھے, نہ سیکرٹری موجود تھے, نہ ایڈیشنل سیکرٹری موجود تھے. تو ہم انتظار کر کر کے پھر آ گئے باہر. شاہ صاحب, حکومت آپ کے خیال میں یہ جو مرحلہ وار منظوری ہو رہی ہے, 35 پہلے ہوئے پھر اب ہوئے, آگے بھی امکان ہے, آپ کے خیال میں حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ استعفے اس طرح سے منظور کیوں کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو آپ میں بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے یہ گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کی نشانی ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. وہ شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس اسٹرینتھ کے مطابق ہم چلے جاتے ہیں, اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن, ان کے پاس تو صرف 21 لوگ ہیں, تو یہ تو پوری اپوزیشن کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, تو کہیں اس کو تبدیل نہ کر دیں. پھر ان کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں جیسے پنجاب میں انہوں نے ہمیں آزمائش میں ڈالا اور ہم آزمائش میں ڈال لیں, ان کو کہیں کہ بھائی آپ کی صفوں کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں, ایم کیو ایم نالا ہے, کچھ اور لوگ ہیں, باپ کے اندر تقسیم دکھائی دے رہی ہے, تو پھر اعتماد کا ووٹ لیجئے. تو اگر اعتماد کا ووٹ نہ لے پائے, 172 نہ ہو پائے, تو پھر کہیں یہ رن آف نہ ہو جائے, رن آف پورے ان کے بندے زیادہ نہ ہو جائیں تو ان کی اسٹرینتھ کم کی جائے. تو یہ مختلف ہیلے بہانے یہ ڈھونڈ رہے ہیں اس نظام کو جو ناکام ہو چکا ہے. بالکل پی ڈی ایم کے اس سٹرکچر کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بالکل نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دے سکا, نہ اکنامک ریوائول دے سکا. لیکن شاہ صاحب جو حالات ہیں, کیا تحریک انصاف اگر اسمبلیوں میں ہوتی تو اسے فائدہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے, سوال یہ ہے, اس اسمبلی کی سچی بات ہے کوئی حیثیت اور اہمیت ہی نہیں رہی. یہ بے معنی ہو کے رہ گئی ہے, اور نہ ہی اسمبلیوں میں کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا, اسمبلی میں ان کے اپنے لوگ ہی نہیں آتے, اسمبلی میں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی, اور صرف مقصد یہی ہے, آبجیکٹو ان کا, کہ طول دی جائے اور اس قسم کی لیجسلیشن کی جائے جس سے اپنے مقاصد حاصل کی جائے. جیسے کہ نیب کے قانون میں ترمیم کی گئی, امینڈمنٹس کی گئی, وہ بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہے مسئلہ جی, اب وہ زیر بحث ہے وہاں. تو اسی طرح جیسے استعفوں کا معاملہ آیا اور انہوں نے ہماری سلیکٹو جب استعفے قبول کیے تو ہم نے پٹیشن دی, ڈالی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اور ہم نے کہا کہ جی یہ کیا ہے, اگر آپ نے قبول کرنے ہیں تو سارے قبول کیجئے اور ہم دینے کو تیار ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, بس یہ ایک جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش ہو رہی ہے, جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے, تو بس یہ ہے. شاہ صاحب, ابھی صدر کی طرف سے
वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहा जा सकता है? अर्ज ये है, सवाल ये है, क्या ये एक तरफ एतमाद के वोट से कतरा रहे हैं? ये सारी कार्रवाई तो उसी की दिखाई दे रही है। ये सारी कार्रवाई, ये जो यकदम अच्छा। पहले रिलक्टेंट थे, इस्तीफे कबूल नहीं करना चाह रहे थे, अब यकलख्त इन्होंने इस्तीफे कबूल करने की जो एक सिलसिला शुरू किया है, तो उसी एतमाद के वोट की घबराहट तो दिखाई दे रही है उसमें। अच्छा, शाह साहब, ये निगरान सेटअप के ऊपर खास तौर पर पंजाब में आज पार्लिमानी कमेटी भी जो है वो इत्तफाक राय नहीं कर सकी। आपके ख्याल में ये क्यों इत्तफाक राय नहीं हो सका? होना भी नहीं था। I'll tell you why। इसलिए नहीं होना था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये समझते हैं कि जो इनका मकसद है, देखिए हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि इत्तफाक राय हो जाए। अच्छा। आप जरा नाम देखिए, हमने जो नाम दिए हैं वो साहिबान हैं जो कि इनके साथ भी काबिल कबूल थे। अगर सुखेरा साहब का नाम तजवीज किया गया तो सुखेरा साहब पर इनको एतमाद है, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं ना। हमारे साथ भी किया उनने काम, इनके साथ भी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो दोनों साइड्स को काबिल कबूल थे और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी था। ठीक। फिर हमने एक और नाम तजवीज किया जो चीमा साहब हैं, जो एक्स चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक, वो भी एक मोहतरम नाम है जी। उसकी बरक्स जो उन्होंने नाम तजवीज किए वो नाम दिए जो उनके साथ मुंसलिक हैं, उनके साथ एफिलिएटेड हैं, उनकी पॉलिटिकल मूव्स में वो उनके साथ रहे हैं। तो इनको दिखाई दे रहा था कि हम अपने मकासद हासिल कर पाएंगे जब यहाँ फैसला नहीं होगा तो मसला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन को वो समझते हैं अपनी एक्सटेंशन, गवर्नमेंट की एक्सटेंशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, और यही हम बारहा चिल्ला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बदकिस्मती से जो उनका आईनी रोल था, जिस अंदाज में उन्हें अंदाज करना चाहिए था, वो गालिबन नहीं कर पाए और आज उनकी गैर जानिबदारी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। आप देखें ना, अभी जो हालिया इंतखाबात हुए हैं, बल्दियाती इंतखाबात कराची में, उसकी अपना आप देख लेना, MQM इनकी हलीफ है। अच्छा। और वो इतने नाला है कि उन्होंने पूरे प्रोसेस से लाताल्लुक हो गए। जमात इस्लामी का हमारे साथ तो कोई इल्हाक नहीं है। वो एहतजाज कर रहे हैं, PTI एहतजाज कर रही है, और अब तो आपने देखा कि पूरी मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे ठप्पे लग रहे हैं, जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रोल प्ले कर रहे हैं, सब कुछ बेनकाब हो गया ना, नंगे हो गए, सब कुछ सामने आ गया। तो ये इस किस्म का जब एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो उससे क्या तासुर जाएगा। मामला तो अब देखिए इलेक्शन कमीशन के पास ही जाना है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का लगाया हुआ निगरान वजीर आला तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल होगा? देखिए, इस पे बहुत बड़ा निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे। अच्छा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हम दयानतदारी से चाह रहे थे कोई रास्ता निकल आए और कोई बेहतर रास्ता निकल आए। हम दयानतदारी से समझ रहे थे और समझ रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी इसी में है कि एक नया इंतखाब हो जाए, एक नया मैंडेट मिल जाए, और जो फैसले होने हैं इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग के वो हो पाए। नहीं तो हम डिफॉल्ट के करीब तर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि टेक्निकली डिफॉल्ट कर भी चुके हैं। अच्छा। तो ये नेशनल इंटरेस्ट में अगर सोचें तो इन्हें अपने रवैये में नजरसानी करनी चाहिए। अच्छा, दो और चीजें हैं शाह साहब। एक तो आप क्योंकि वजीर खारजा भी रहे हैं, वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पेशकश की है भारत को मुज़ाकरात की, और तीसरे मुल्क का भी जिक्र हुआ, बाद में एक रीजॉइंडर भी फॉरेन ऑफिस का आया कि कश्मीर से ये मामला जो है वो लिंक होगा।
लेकिन क्या वजीर आजम को भारत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश करनी चाहिए थी? देखिए, हमने जितने लीगल एक्सपर्ट से मशावरत की है हम्म। और जो उनकी ओपिनियन है वो अच्छा। ये है कि आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है इसको अच्छा। इस 90 दिन से आगे जाने की। विद इन 90 डेज है, इसका मतलब नहीं 90 दिन जरूरी 90 दिन पूरे हो, उससे पहले भी हो सकते हैं। अच्छा। अच्छा। अगर ये ऐसा नहीं करते तो ये आइन से मावरा होगा, ये अच्छा। आइन शिकनी होगी, और ये एक और खतरनाक खेल खेलेंगे। ठीक, ये तो इलेक्शन की बात ही, लेकिन शाह साहब जो वजीर आज़म पाकिस्तान ने पेशकश की है कश्मीर के ऊपर, वो भारत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बाद में कहा गया है कि वो लिंक होगा कश्मीर से, तो मैं उस बारे में जानना चाह रहा था कि क्या वो पेशकश वजीर आज़म पाकिस्तान को करनी चाहिए थी? देखिए, मैं करूं, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं और मेरी पार्टी भी समझती है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर जो तनाज़ात हैं हाँ। उनका हल कोई मिलिट्री सोल्यूशन उसका है नहीं। मसाइल जो हल करने का वाहिद रास्ता तो गुफ्त शुनीद है, ठीक है। मज़ाकरात के जरिए। ठीक, अब मज़ाकरात के लिए अगर आगे बढ़ना है तो हमने इनकार नहीं किया, भारत ने वहां से जिसे कहते हैं ना मज़ाकरात से वो इनकारी हुए और फिर उन्होंने ऐसे यकतरफा इक़दामात है जिससे कि जो कहते हैं ना क्लाइमेट मजीद विशिएट किया उन्होंने उसको मजीद उसमें पेचीदगियां पैदा कर दी। मिसाल के तौर पे मकबूजा कश्मीर का जो उन्होंने स्टेटस अच्छा। छीना है और जहां जो जिस किस्म के कवानीन उन्होंने मुसल्लत किए हैं, जिस किस्म की वो डेमोग्राफिक चेंज वहां लाने की कोशिश कर रही हैं और जिस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रही हैं, उससे हालात बिगड़े हैं। तो क्या अगर वो संजीदा हैं तो क्या उस पॉलिसी पर नजरसानी करने के लिए तैयार है? नंबर एक। नंबर अच्छा। दो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऑफर की है उसमें जो सबसे ज्यादा एतराज उठा है वो कश्मीरियों को उठा है। उन्होंने कहा आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, हमारे पे जुल्म हो रहा है, हमारे साथ वहां हमें कुचला जा रहा है और आपने उनको ऑफर की और हमसे मशावरत नहीं की। या तो होता ना आपने उनसे कोई रियायत दी होती, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में कोई ठहराव पैदा होता, उनकी जिंदगियों में कोई आसानी पैदा की जाती, तो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट हिंदुस्तान क्रिएट करता और आप हमसे मशावरत करके आगे बढ़ते, क्योंकि वो एक फरीक है और बहुत अहम फरीक है। ठीक है ना जी? तो उससे बाला ठीक। बाला अगर आप कोई चीज करना चाहेंगे तो वो सिरे चढ़ेगी नहीं। देखे ना, आपने अच्छा। देखा कि जनरल मुशर्रफ के जमाने में कश्मीरियों को एतमाद में लिए बगैर एक पेशरफ्त करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सिरे चढ़ी नहीं ना, क्योंकि जो अच्छा। सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट फरीक है लास्ट उससे ताल्लुक हो गया। लास्टली शाह साहब, आज फिर आपके कॉलीग हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा वो इदारों से भी जो है वो किरदार अदा करने का कहते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट या इदारों के हवाले से जो पॉलिसी है वो है क्या? किस चीज़ की ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करे? देखिए, पहली बात तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर इदारे के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाह है, क्योंकि उनका उनका एक अपना रोल है। अच्छा। इस मुल्क में अगर हमने हमारे मुल्क में तरक्की करनी है तो आप देखें ना, अदलिया का अपना रोल है, वो अगर अपना पूरा रोल अदा नहीं करते तो मुल्क में वो इंसाफ जो हम जिसकी तवक्को करते हैं हमें नहीं मिल पाएगा। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अपना रोल है, उनके रोल की वजह से आज पाकिस्तान में अमन लौटा था, दहशतगर्दी की जंग में हमने पेशरफ्त की थी, हमें कामयाबियां हुई। ठीक, और उनकी उनकी कोहेजन और एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान के मफाद में है, तो उनके रोल से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मुकन्नना का अपना रोल है, ठीक है ना जी, सिविल सर्विस का अपना रोल है। जब तक ये सारे इदारे मुल्क के बारे में यकजा होके नहीं सोचेंगे कि देखिए ना मुल्क की कैफियत क्या है। मुल्क की कैफियत ये है
कि आज आपका जो ताजिर है और जो सनतकार तबका है वो गवर्नर स्टेट बैंक को अपनी जो इंडस्ट्री है जो बंद हो चुकी है, बंद हो रही है, उसकी चाबियां पेश कर रहे हैं कि भाई हम तो नहीं चला पा रहे, आप हमसे चाबियां ले लीजिए। आपका जो ताजर तबका है वो स्टेट बैंक के सामने एहतजाज कर रहे हैं। आज आपके जो चेंबर के साहिबान हैं वो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें कॉल दी है गालिबन 23 तारीख की, ठीक है ना जी। आपका जो किसान है वो मारा मारा फिर रहा है, इस वक्त गंदम को यूरिया खाद की जरूरत है, दस्तयाब नहीं है। आपका जो आम शहरी है, मजदूर है, आपका जो अपना शहरों में रहने वाला मुतवस्सित तबका है, वो आटे के लिए लाइनों में खड़ा है, उसको आटा दस्तयाब नहीं है जी। जो सैलरीड तबका है वो महंगाई में पिस चुका है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सनतें बंद हो रही हैं। मुझे बताइए ना कि आज कौन सा तबका आज इत्मीनान का सांस ले रहा है? इनके पास हाल ही नहीं है। इनके अपने जो हैं मुस्लिम लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि भाई इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, मुल्क डूब रहा है, मईशत डूब रही है। खुदारा आप अपने केसेस से जरा ऊपर होकर जरा सोचिए ना, अपने नाक से लुक बियॉन्ड योर नोज जिसे कहते हैं, तो वो नहीं देख पा रहे और मुल्क डूब रहा है। तो इसमें सबको, पूरे जितने स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान के, उनको कौम के बारे में सोचना चाहिए, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, राइट। बहुत शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन बात कर रहे थे। ये जो आज के इश्यूज हैं, एक तो असम्बलियों में वापसी होगी या इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा है इस पर, और फिर केयर टेकर सेटअप पर। अब्बास साहब, एक ब्रेक के बाद